Hi guys, good evening. Hi everyone. So let's start today's session. I think you should be able to unmute yourselves. If not, you could let me know. Yeah, I hope you can now unmute yourselves. Great. Okay. So I'm just going to share my screen. And we are going to talk about the certification from EC Council, which you guys are well aware of. It is CEH V12, right? So can anyone tell me like what is in this certification? Like what concepts or what technologies would you be learning here? Yes. Any idea, guys, girls? Sir, it would be some concepts of Linux, some basic concepts of how these databases and web application works, and Okay, understanding of networks, how data flows. right. So that is going to be the prerequisite for the certification. ठीक है? So ये सब आएंगे हमारे पास जो होते हैं prerequisites. So like you should have a little bit knowledge of Linux, like the basic knowledge. That's it. Basic knowledge of computer networks and operating systems. That's it. Okay. होगा क्या इस certification में? What is going to be discussed in this certification? That's my question. So in this certification, you're going to understand different concepts related to cybersecurity, right? So the name of the certification is CEH. I know that. So which implies कि यहाँ पे आप ethical hacking सीखोगे, but that's not the case. That's not the only thing you will be learning. You will be learning different components, different domains of cybersecurity, right? And this certification is an intermediate or can be considered as an entry level certification by the most of recruiters. Okay, and if you want to go in SOC, चाहे आप SOC में जाना चाहते हो, or if you want to go in any other domain like pen testing, GRC, this certification is going to help you out and it is going to help you get that job. Understood? So that is what is going to be taught in CEH, right? So is anyone here CEH V11 certified, or is anyone holding CH practical? किसी के पास पहले से है? Have you guys heard of these two certifications before? Nope. Okay. So if I talk about CEH practical, okay, so what is CEH practical? CEH practical, let me open the chat box. And guys, you can just unmute yourselves. That's not an issue. Unmute karo so that we can have a discussion as well, right? So if I talk about CH practical, that's a 6-hour exam, right? And if you talk about CEH V12 या फिर V11, that is a theoretical exam and it is going to take 4 hours to complete it, right? This exam mein, you will have 20 challenges that you have to solve and it is going to be a live exam. Like आप एक environment में होगे and inside that environment you will be given some challenges जैसे
You have to perform an XSS attack. You have to perform an SQL injection attack. You have to use tools like Hydra. You have to use tools like John the Ripper to crack the credentials, right? This one is going to contain MCQs. इस वजह के अंदर MCQs होंगे, ठीक है जी? इसके अंदर होंगे MCQs. एंड इस एग्जाम को हम CEH ANSI भी बोलते हैं. ANSI is short for American National Standards Institute. Clear? So इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, राइट? बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लैब्स हैं, वो इन दोनों के लिए सेम रहेंगी, राइट? सो जो आप V11 के लिए पढ़ोगे, जो उसका कोर्स मटेरियल होगा एंड जो उसमें लैब्स मिलेंगी, वही सेम आपकी यूज किस में होंगी? इन CH practical as well. And if you take both of them, you get a certification CEH Master. All right. So any questions? किसी को कोई questions related to this? Yeah, sir. Abhinav here. So, Yeah, hi Abhinav. understanding is this: we have to appear 2 separate exams. First is written and a practical, and then we will known as CH Master certified, like having a certification. Right. And But it is up to you. जैसे अगर आपको एक ही सर्टिफिकेशन करनी है, वो कर सकते हो. तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं आएंगे. अगर आप CH V12 भी क्लियर करते हो, आपके क्रेडेंशियल्स जनरेट होंगे एंड यू कैन put that on LinkedIn and you can tell the recruiters that you have the certification. ठीक है ना? तो हाँ, so your it next will be question. understood as a like written part clear हुआ है. Right. And it has to be attempted in V12 or V11. वो It choice is है. up to you. हाँ, वो आपकी choice है. क्योंकि V11 अभी भी active है, ठीक है? So what people are doing is V11 का काफी कोर्स मटेरियल अवेलेबल है. V11 की काफी वीडियोस आर देयर ऑन द इंटरनेट. सो लोग CH प्रैक्टिकल के साथ V11 दे रहे हैं एंड फिर भी वो CH मास्टर बनेंगे, राइट? सो अगर आप V12 करते हो और साथ में CH प्रैक्टिकल देते हो, तो उसमें भी आप CH मास्टर बनोगे. Okay, Alright. and sir, for the certification cost, so when we have to go for this, we have to purchase 2 like certification exams, practical and V11 or V12 separate. राइट. बट कभी कभी क्या होता है, इस साल भी टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ 2022. So this is for students who have asked this question on YouTube as well, right, Arfat? तो किसी को अगर CH प्रैक्टिकल लेना है, तो उसके लिए एक स्कॉलरशिप थी EC काउंसिल की, ग्लोबल स्कॉलरशिप. And if you qualified that scholarship, you would get it for $100. CH practical का जो वाउचर है, राइट? तो अभी तो वो स्टार्ट नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. एंड यू कैन फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन ऑन LinkedIn. सो LinkedIn पे इफ यू गाइस आर एक्टिव, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट? तो ये हो गए आपकी प्रैक्टिकल. कभी कभी आपके पास वो $100 का आ जाता है, राइट? Okay, मान के sir. चलो अराउंड 7,000 to 8,000 rupees. And only CH practical भी दे सकते हैं, like not required if you want to go V11 or V12, directly you can appear CH practical also. हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली गो फॉर CH प्रैक्टिकल, क्योंकि CH प्रैक्टिकल एक ऐसा एग्जाम है जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, आपने वो चैलेंजेस रियल टाइम में सॉल्व किए, राइट? बिकॉज Right, sir. साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या ढूंढेंगे? वो वही ढूंढेंगे जिसको नॉलेज है, जिसने On प्रैक्टिकली hands, उन चीजों पे yeah, काम on किया, hands जिसको clear हैंड्स ऑन, है. राइट, जिसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, राइट? तो उसके लिए CH प्रैक्टिकल एक काफी अच्छा एग्जाम है, Got it, sir. राइट? ठीक है. एंड जो V12 है, एवरीवन, V12 हैज कम अप विद अ न्यू रेंज कॉल्ड CyberQ. Okay, so that's their simulation range. It's also called cyber range, jahan pe every month there will be new challenges, right? And you have to solve those challenges. For example, I'll show you guys. So this is the official page for CEH V12. I'll share it with you guys. And Manmohan, देखो, फीस की बात आती है for CEH V12. If you approach EC Council directly, then obviously there will be some additional costs associated as well, because we are official learning partners, so you get it at a discounted price. ठीक है. बाकी, because I'm dealing with the instruction of this course, I'm not aware of how much it is going to cost you when you
talk to a networking team member, so you can just talk to them. उनसे एक बार आप पूछ लो, they will let you know, right? You can put a query there, right? तो इनके पास अब आजकल क्या है, क्योंकि लोग यही बोलते हैं कि CH V12 एंड V11 में डिफरेंस क्या है, बिकॉज सिलेबस तो सेम है, राइट? एंड टू बी ऑनेस्ट, यस, सिलेबस अगर आप देखोगे आपको वही सेम कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, राइट? आपको वही सेम कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे. इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन, राइट? स्कैनिंग नेटवर्क्स, वहां से लेके एंड तक आप जाओगे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोग्राफी. So if I take you guys to the official labs of EC Council, so this is my portal for learnondemand.net, right? तो यहाँ से आप EC Council की जितनी भी labs हैं, you can access them, right? So this is V11 lab module and V12 जो lab modules हैं वो भी बिल्कुल सेम ही है, right? They're also the same. जैसे यहाँ पे भी आप malware के बारे में सीखोगे, यहाँ पे भी आप denial of service के बारे में सीखोगे, session hijacking. Modules are not going to change. चेंज क्या होगा, मॉड्यूल के अंदर की जो लैब्स हैं, राइट? सो इफ यू गो टू अ मॉड्यूल लाइक दिस वन, इसमें और ज्यादा चैलेंजेस आ जाएंगे. लाइक मैलवेयर थ्रेट्स है, तो मैलवेयर एनालाइज कैसे करोगे? स्टैटिकली एनालाइज करोगे, डायनामिकली एनालाइज करोगे? अगर डायनामिकली एनालाइज कर रहे हो, हाउ आर यू गोइंग टू सेट अप योर सैंडबॉक्स, राइट? तो उससे रिलेटेड चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि V12 क्या कर रही है? V12 इज keeping in mind the latest vulnerabilities that have been launched or that have been released in 2022, right? जो भी vulnerabilities आई हैं, and उनके accordingly जो अपनी साइबर क्यू उनका लैब प्लेटफॉर्म है, उनको उन्होंने अपडेट किया, right? So that is how it is going to work. Is that clear, everyone? Yes, sir. Okay. Yeah. So let me show you the labs as well. Like, takes around 50 to 60 seconds to build up, and these labs are browser based. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको लगे कि इस एग्जाम के लिए you need to purchase a laptop with at least 16 GB of RAM. हाँ, अपनी प्रैक्टिस के लिए if you are purchasing a device with 16 gigs of RAM, i5 or i7 processor, right? A good amount of storage. That's for your own good. But to clear this exam, you can do that through an old laptop as well, जो 4 GB RAM वाला है, right? So this is module 7, malware threats. तो ये मॉड्यूल अब कहाँ पे है इन CH V12? दिस इज राइट हियर, मॉड्यूल 7. बस ये है कि पहले इससे रिलेटेड एक्सरसाइज अराउंड 10 to 15 थी, नाउ दे हैव मोर देन 20. सो वो क्या कर रहे हैं? लैब्स अपडेट करते जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे इससे ज्यादा क्या ही डोमेन्स आ जाएंगी. दे आर टीचिंग यू IoT हैकिंग, दे आर टीचिंग यू क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? क्लाउड security, they are teaching you cryptography, which is obviously the basics of cyber security. The only modules that they haven't added here is automotive security, क्योंकि automotive security के लिए एक अच्छी सिमुलेशन चाहिए, राइट? तो आई शो यू गाइस कि अगर आपको ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, कार पेन टेस्टिंग सीखनी है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल, जो BS6 कार्स होती है उनमें वैसे कौन सा मॉड्यूल होता है, ऐसी कौन सी चिप होती है जिसको यूज करके आप उसको पेन टेस्ट कर सकते हो, राइट? सो आई गिव यू गाइस सम links and tutorials today as well, right? So that is what you can do, right? So if I open this lab, these are all browser based. तो इसमें आप सीखोगे कि कौन कौन से tools होते हैं, right? And these are the operating systems that are provided to you already, जैसे कि Windows 10, Parrot Security, Windows Server 2019, 2016, Ubuntu, and a Android machine, right? अब you must be thinking Kali कहाँ गया? Yes, Shamin. सर इसमें बेसिक क्या क्या चाहिए अगर इसको करने के लिए? इसमें बेसिक वैसे तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट विल हेल्प, ठीक है? इट विल हेल्प अगर आपके पास थोड़ी सी लिनक्स की नॉलेज है, थोड़ी सी नेटवर्किंग की नॉलेज है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज है. बट अगर वो नहीं भी है, आई कैन शो यू द कोर्स पोर्टल हियर. जैसे मैं अभी आपको लेटेस्ट एक कोर्स अपना दिखाता हूँ.
Just a second, let me go to my courses. तो starting में मैं क्या कराता हूँ? In the beginning, I teach Linux, I teach networking and उससे related जो भी labs रहती है वो मैं सब सिखाऊंगा. Got it? तो वो सब चीजें यहाँ पे रहेंगी. You don't have to यार worry about it. अभी सपोज करो सर मैं Palo Alto और CCNP कर रहा हूँ, CCNA एंड CCNP Right, नेटवर्किंग right. से, हम्म. तो मेरे लिए सही रहेगा या फिर? हाँ देखो, अब आपका डिपेंड करता है विच डोमेन डू यू रियली वांट टू मूव इनटू. अगर आपको कोर साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाना है, क्योंकि जैसे अभी आप पॉलो ऑल्टो के साथ काम कर रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ, आप एक्चुअल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सॉक टीम में हो या अभी नॉक टीम में हो? अभी एक्चुअली सर मैं LNT में हूँ और मेरा जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट से लेके मतलब एवरीथिंग मैं ही करता हूँ, ओके. नेटवर्किंग एंड सपोर्ट, फायरवॉल्स विंडोज, भी, हाँ सब कुछ मेरे पास है। राइट, फायरवॉल्स भी आप ही देख रहे हो. हाँ तो ऐसे जहां तक देखा जाए, यू आर ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ सॉक टीम, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑर्गेनाइजेशंस कि वो किस तरीके से आपको एक डेजिग्नेशन देंगी, राइट? तो नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, सिस्टम हार्डनिंग, ये सब सॉक में आप करोगे ही करोगे, ठीक है? तो CH आपको वो चीजें सिखाएगा, आपको वो अटैक सिखाएगा जिससे बाद में जाके यू कैन बिकम अ बेटर डिफेंडर. ठीक है, डिफेंडर इन द सेंस आप वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के लॉग्स चेक कर रहे हो अपने, ठीक है? जैसे Akamai की हो गई, ठीक है, इम्परवा की हो गई वेब एप्लीकेशन फायरवॉल. उसमें अब आपके पास लॉग्स आ रहे हैं, यू कांट अंडरस्टैंड वेदर दिस इज एन अटैक और नॉट, या फिर एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है. तो यस CH एक ऐसी सर्टिफिकेशन है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले ये बता रहा था, दैट यू कैन मूव इनटू एनी डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी विद दिस, राइट? तो ये आपको वो बेसिक नॉलेज दे देगी जिससे आपको अगली डोमेन अपनी चूज करनी है. जैसे आई एम टीचिंग अ प्रोग्राम अराउंड 10 PM, तो उसमें द नेम ऑफ दैट कोर्स इज सीसा प्लस, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट प्लस. तो उसमें बेसिक नॉलेज क्या काम आती है जो CH में सीखी होती है, क्योंकि वहां पे फिर आसान हो जाता है लोगों के लिए. इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये किस टाइप का अटैक है, अटैकर की मेथोडोलॉजी क्या रही होगी, राइट? तो यू कैन टेक अप दिस कोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो आप ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हो, राइट? जैसे यू सेड यस यू नो हाउ टू वर्क विद सर्वर्स, तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में भी पता है. यू आर डीलिंग जी विद जी नेटवर्किंग, थोड़ी बहुत आपको लिनक्स बेस्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी आती होगी, राइट? हाँ तो आती है सर। तो दिस इज फाइन, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए नॉलेज यहाँ पे टू गेट कितने स्टार्टेड घंटे विद की दिस होगी कोर्स. सर ये टोटल? जो टोटल कोर्स रहता है दैट इज अराउंड 62 आवर्स, ठीक है ना? दैट इज अराउंड 62 आवर्स. मीन्स डेली बेसिस होगा सर? हाँ, ये डेली बेसिस होगा, 1.5 आवर्स. ओके, यस ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम. Does anyone else have any questions for me? Yeah, sir, only for the certification part, आपने बताया कि if we get enrolled through the counselor of networking kings, so the course जो अभी start हो रहा है, this includes certification also, Right, this includes certification as well. master. Master नहीं, this will include जो है CEH V12. This is CH V12. Okay, so only written part. मास्टर only written part. जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अभी आएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी, वो भी अलग से आएगा. एंड CH प्रैक्टिकल इज ऑलरेडी गोइंग ऑन ड्यूरिंग द वीकेंड्स, राइट? तो भी बहुत स्टूडेंट्स ने हमें बोला था टू स्टार्ट CH V12, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी रिलीज्ड इट, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ऑलरेडी CH प्रैक्टिकल आ चुका है. सो दे वांट टू गेट देयर CH मास्टर, राइट? दे वांट टू गेट देयर CH मास्टर. दैट इज द रीजन दे आर गोइंग विद दिस. ओके, सो ये जो अभी कोर्स होगा, जो इस वीक से हमारा शुरू होगा, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 6:30 to 8 PM. वो कौन सा रहेगा? CEH V12. CEH प्रैक्टिकल आएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी, right, around 10 to 15 January, and there is already a CH practical batch going on that started in the month of November, and it is on weekends, right? तो ये भी आएगा नया बैच, alright?
ओके देन सर, ये जो CEH V12 का कंटेंट होता है दैट इज रिटर्न बेस्ड MCQs जो है, एंड CH प्रैक्टिकल का जो 20 चैलेंजेस होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ V12 ओनली, और दैट्स ऑल टुगेदर V12 डिफरेंट देखो, डोमेन? देखो कोर्स पूरा सेम रहता है, ठीक है। जो कोर्स है उसमें थोड़ा से डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसमें भी जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो सेम CH प्रैक्टिकल में आएंगे, बट इसमें जो फोकस होता है वो होता है आपका 60% थ्योरी, राइट, एंड 40% लैब्स, राइट। इसमें रहता है 70% लैब्स प्लस 30% थ्योरी, राइट। दोनों कोर्सेज अलग हैं क्योंकि यहाँ पे आपके जो सिनेरियोज आएंगे वो अलग आएंगे, राइट। जो सिनेरियोज आएंगे वो अलग होंगे। आपको बताएंगे कि आप इस सिनेरियो में हो, एक अटैक हो चुका है, सो व्हाट वुड यू डू। आपके पास ऑलरेडी ये डिफेंस सिस्टम्स थे, किस पे लॉग्स आएंगे, मतलब इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस इज ऑल रिलेटेड टू हैकिंग। CEH प्रैक्टिकल में मॉड्यूल्स वो सेम है, बट आधे मॉड्यूल्स में से तो एग्जाम भी नहीं आता है। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं? पेन टेस्टिंग से रिलेटेड, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं पेन टेस्टिंग से रिलेटेड। तो ये दोनों कोर्सेज सेम नहीं है, मॉड्यूल सेम है, राइट। समझ आ रहा है ना आपको? जो या मॉड्यूल्स हैं तो सब 20, कंटेंट्स का हेडिंग सेम है बट उसके अंदर का जो मटेरियल्स है वो डिफरेंट है। वो प्रैक्टिकल के लिए अलग रहेगा, V12 के लिए अलग रहेगा, ओके राइट। सर, अब डन अब विद द जैसे क्वेश्चन। मैं, हाँ जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी यहाँ पे मालवेयर थ्रेट्स करके सेक्शन है, राइट। तो इसमें इन्होंने इतना रैंसमवेयर के बारे में नहीं बताया। इसमें सिर्फ बताया कि किस तरीके से आप स्टैटिक एनालिसिस करोगे, डायनामिक एनालिसिस करोगे, दैट्स इट। बट इफ यू लुक एट द सिलेबस ऑफ V12, तो इन्होंने इसको अब और ज्यादा इसमें जाके टॉपिक्स ऐड किए, जैसे रैंसमवेयर। बिकॉज अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इफ यू लुक एट द अटैक दैट वाज परफॉर्म्ड ऑन एम्स, दैट वाज अ रैंसमवेयर अटैक। तो किस तरीके से रैंसमवेयर काम करता है, किस तरीके से आप उसको एनालाइज करोगे। सो दे आर टीचिंग दैट नॉट ओनली इन द कोर्स बट ऑल्सो इन देयर साइबर रेंज। जो उनकी अब नई साइबर रेंज आई है जिसका नाम है साइबर क्यू। तो इसमें आपको एक चीज दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सो एवरी मंथ, ठीक है ना, सो एवरी मंथ दे हैव न्यू challenges. Let me just scroll down. ये आ गया compete. You guys can see कि हर मंथ आप एक नए चैलेंज के ऊपर काम कर रहे होगे, राइट। तो ये आ जाता है आपका कोर्स। अंडरस्टूड? एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? ठीक है, सो लेट्स लुक एट व्हाट यू वुड बी डूइंग हियर। सो सबसे पहले तो यू नीड अ डिवाइस टू टेक अप दिस कोर्स। 4 GB ऑब्वियसली मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, बट अगर आपके पास, इफ यू हैव अ डिवाइस विद 8 GB ऑफ रैम एंड i3 प्रोसेसर, प्रेफरेबली 6th और 7th gen, मैं आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ। तो यू आर गुड टू गो एंड टेक दिस कोर्स, राइट। एंड जरूरी नहीं है कि जो भी लैब्स हम यहाँ पे कर रहे हैं इस कोर्स के लिए वो हम सिर्फ ब्राउजर बेस्ड ही करेंगे। वो ब्राउजर बेस्ड लैब्स आर ऑलरेडी सेटअप फॉर यू। उसमें बस आपको सिनेरियो स्पेसिफिक लर्निंग मिलेगी। हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट। फॉर एग्जांपल ट्राई हैक मी, BTLO। मैं आपको प्लेटफॉर्म्स दिखाई देता हूँ बोलने से अच्छा है। So there's a platform called Try Hack Me. How many of you know about it already? Try Hack Me के बारे में सुना है किसी ने यहाँ पे? Yes. Write down in the chat box if you guys have heard of it. आपने सुना है सर? Alright. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी पीयूष। सर ये CEH में हमको हम लोगों को हैकिंग करना ही सिखा जाता है या डिफेंड करना सिखा जाता है? दोनों चीजें हैं यहाँ पे, दोनों चीजें। बट जो ज्यादा फोकस है वो ऑब्वियसली हैकिंग के ऊपर है। 70% हैकिंग है, 30% आपका डिफेंस है। और उसमें भी किस तरीके से आप फायरवॉल्स के साथ काम करोगे, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देंगे किस तरीके से आप मैलवेयर प्रिवेंट कर सकते हो। और आप साथ में जो जो अटैक परफॉर्म कर रहे हो, राइट, जो जो अटैक परफॉर्म कर रहे हो
उसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन टेक्निक्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक अटैक रहता है ऑन वेब एप्लीकेशन इज कॉल्ड XSS, राइट, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को आप किस तरीके से रोक सकते हो, लाइक आपकी क्या सिक्योर कोडिंग टेक्निक्स यूज होंगी वहाँ पे। सो उसकी लैब्स भी आपको मैं दूंगा, जैसे देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड सिक्योर कोडिंग डोजो, राइट। तो इफ यू क्रिएट एन अकाउंट हियर, इफ यू लॉग इन, जैसे लेट मी लॉग इन, आई विल शो यू। So this is the only resource or one of the few resources जिसमें आप कोड ऑडिटिंग सीखोगे, ये जिसको बोलते हैं सिक्योर कोडिंग, राइट। यूजुअली अगर आप ढूंढो कि हैकिंग से रिलेटेड रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट बहुत मिल जाएंगी, राइट। मैलवेयर से रिलेटेड बहुत मिल जाएंगी, बट एक जो डोमेन आती है दैट इज सिक्योर कोडिंग, जो आजकल हर डेवलपर को सीखनी चाहिए, राइट। बिकॉज सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट a security analyst's responsibility, right? ये सबकी responsibility, it is a shared responsibility inside the organization, ठीक है। तो डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, या फिर इफ यू आर अ वाइट बॉक्स पेन टेस्टर। वाइट बॉक्स पेन टेस्टर क्या होती है, क्या चीज होती है? हमारे पास बेसिकली दो टाइप की पेन टेस्टिंग टेक्निक्स रहती है। एक होती है ब्लैक बॉक्स एंड एक रहती है व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है आपको कोई नॉलेज नहीं है आपके टारगेट के बारे में, आपको उसके अंदर you have to penetrate the target and gain as much information as possible. व्हाइट बॉक्स क्या होती है? व्हाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग में आपको नॉलेज दी जाएगी आपके टारगेट के बारे में। फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे कि ये आपकी एप्लीकेशन है और ये उसका सोर्स कोड है, एंड अब आप इसको ऑडिट करो एंड ढूंढो क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं। तो उसमें काम आती है क्या, उसमें किसकी हेल्प आती है आपको? सिक्योर कोडिंग की या कोड ऑडिटिंग की। तो यहाँ पे आपको सारे जितने लैब्स हैं वो मिल जाएंगी आपको, राइट। सो जो तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी अपने लैब प्लेटफॉर्म में इंक्लूड किया वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनके रिलेटेड लैब रिसोर्सेज कम है, तो उसके लिए डोंट वरी, I've got everything covered। वो चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हो, राइट। ओके, सो मैं क्या बता रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अब CEH ने अपना ऑफिशियल पेन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन रखी है वो है पैरेट ओएस, ठीक है, पैरेट सिक्योरिटी। पहले CEH के जो एग्जाम्स होते थे उसमें जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था दैट वाज कैली लिनक्स, राइट। तो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इक्वली गुड, ठीक है। दोनों के नए अपडेट्स आते रहते हैं, you get a variety of tools, the operating system has also become very fun to work with। ऐसे बोरिंग लिनक्स नहीं आपको लगेगा, क्योंकि उनका जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा हो चुका है। तो इफ यू गाइज वांट टू एक्सपेरिमेंट बिफोर द क्लासेस स्टार्ट, आप खुद भी चेक कर सकते हो। सो इफ यू क्लिक ऑन डाउनलोड, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। सो द ऑप्शन दैट यू हैव टू सिलेक्ट इज सिक्योरिटी एडिशन। सिक्योरिटी एडिशन में अगर आप इसको डाउनलोड करते हो, obviously in the next class I'll show you how to install it, okay। and एक platform है which is Hack the Box, which is also a very popular training platform। वो भी अब ब्राउजर बेस्ड क्या यूज कर रहे हैं, पैरेट ओएस, ठीक है। तो ये आ जाएंगी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो मनमोहन, कोडिंग यहाँ पे मतलब डेवलपर्स पर्सपेक्टिव से नहीं हमने सीखनी है कोडिंग, राइट। हमें सीखनी है कि किस तरीके से हम अपने टूल्स बना सकते हैं, या जो ऑनलाइन जो भी टूल्स हैं उनको अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज करें, राइट। So we don't have to learn programming from scratch। Sir, sorry to ठीक है ना? disturb you. Sorry, sir, I हाँ am जी, हाँ from जी, Nepal हाँ जी, हाँ जी। and मैं थोड़ा हिंदी भी बोल लेता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता था, पहले CCNA पढ़ो, उसके बाद RHC पढ़ो और उसके बाद CEH पढ़ो। हम्म, और क्या देखो ये दोनों स्किप करके भी मैं आ सकते हो क्या CEH में? कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्योंकि लिनक्स में हमेशा जब भी मेरे ये डेमो सेशंस होते हैं उसमें मैं बताता हूँ, लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि RHC ऐसे करें या नहीं करें। देखो वो जो अब वो इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट की अपनी पॉलिसी हो सकती है, बिकॉज अगर सीधे CH कर देंगे
तो ऑब्वियसली वो एक ही बैच अपना प्रमोट कर पाएंगे, राइट? अगर अगर वो बोलेंगे कि पहले CCNA करो फिर CH करो एंड देन CH करो, CCNA RHCSA एंड देन CH, तो उनके तो 3 बैचेस जा रहे हैं, राइट? है ना? तो देखो वो CH स्किप कर सकते हैं क्या? CEH स्किप करना है किसके लिए? हाँ। सिक्योरिटी के लिए। आप अभी ये CH है ना, राइट? तो आप नहीं CH स्किप CH करना है। नो RHC स्किप कर सकते हैं क्या? RHCSA आप स्किप कर सकते हो, RHCE भी अभी इसके लिए आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो लिनक्स आपको बेसिक सीखनी है। आपको कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिनक्स आना जरूरी नहीं है अगर आपको पेन टेस्टिंग या आपको अगर साइबर सिक्योरिटी सीखनी है। आपको फंडामेंटल नॉलेज चाहिए, राइट? समझ रहे हो ना? आप यहाँ पे डॉकर्स, अगर आप डॉकर या कंटेनराइजेशन सीख लेते हो दैट्स अ गुड थिंग, बट जरूरी नहीं है कि मतलब कि वो प्री रिक्विजिट है। अगर प्री रिक्विजिट होता तो इसी काउंसिल खुद बोलता, या और भी जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है, जैसे देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ईज़न सिक्योरिटी, उनकी सर्टिफिकेशन है EJPT V2, वो आपको बोलते कि पहले ये करके आओ। या OSCP जो एक काफी प्रीमियम सर्टिफिकेशन है फॉर साइबर सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग, वो भी आपको बोलते कि ये करके आओ। ऐसा कुछ नहीं है, राइट? ओके सर। समझ रहे हो ना मेरी बात आप? CCNA लेवल भी मैं नॉलेज यूट्यूब नहीं देख चाहिए। के भी सीख सकता हूँ हाँ, RHC। RHC आप सीख सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ ना, आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए, पेन टेस्टिंग के लिए उतने लेवल की नॉलेज नहीं चाहिए कि किस तरीके से स्टोरेज वॉल्यूम संभालनी है, किस तरीके से आपको पूरी लिनक्स के अंदर नेटवर्किंग आनी चाहिए। आपको बस बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस डायरेक्टरीज क्या होती हैं। अब देखो RHCSA में, RHCSC में आप जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उन सब के बारे में सीखोगे कि बिन डायरेक्टरी में क्या होता है, राइट? ETC डायरेक्टरी में क्या होता है, SBIN डायरेक्टरी में आपके पास कौन सी फाइल्स आएंगी, राइट? ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे। बट साइबर सिक्योरिटी में आपको बेसिक नॉलेज ही आपकी हेल्प करने वाली है, राइट? आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, हाँ, कि इस डायरेक्टरी में क्या पड़ा है, इस कमांड से क्या हो रहा है, राइट? बट उतनी एडवांस नॉलेज आपको नहीं चाहिए। यू डोंट वांट टू बिकम अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद CH करना चाहते हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सेम गोज फॉर CH, ठीक है? सेम गोज फॉर CCNA। तो CCNA में भी कितनी नॉलेज आपको हेल्प करेगी इन साइबर सिक्योरिटी? ऑब्वियसली मॉडल्स की नॉलेज हेल्प करेगी, राइट? OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, राइट? OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, उसके बाद IEEE 802 प्रोजेक्ट। बट एक एक चीज तो हमें वहां नहीं चाहिए, जैसे पोर्ट सिक्योरिटी कैसे काम कर रही है, DHCP स्नूपिंग कैसे काम कर रही है, OSPF कैसे काम कर रहा है, राइट? उतनी नॉलेज हमें नहीं चाहिए वहां पे CH के लिए, राइट? और CH में आप किस टाइप की पेन टेस्टिंग सीख रहे हो? आप एक मशीन को पेन टेस्ट कर रहे हो, आप पूरे नेटवर्क को पेन टेस्ट नहीं कर रहे हो, राइट? तो CH एक एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन है। अब जैसे CH के बाद और भी काफी सर्टिफिकेशंस आती हैं, जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, उसका नाम है सर्टिफिकेशन कॉल्ड ECPTX, ठीक है? So this is by 𝐍𝐸 Security, and what does this certification teach you? It teaches you Active Directory pen testing. तो ऑब्वियसली ये एक बिगिनर करेगा तो उसका फायदा नहीं है, राइट? इफ अ बिगिनर इज टेकिंग अप दिस कोर्स तो उसका कोई उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले उसको एक्टिव डायरेक्टरी सीखना पड़ेगा। समझ आ रहा है पीयूष? राइट? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो CH एक एंट्री लेवल कोर्स माना जाता है इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज। किसी किसी जगह में दे कंसिडर इट टू बी एन इंटरमीडिएट लेवल सर्टिफिकेशन एज वेल, ठीक है? सो ये डिपेंड करता है रिक्रूटर्स के ऊपर। जैसे इफ वी सर्च फॉर जॉब्स इन इंडिया तो देखते हैं कि कितने जॉब्स हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जो CEH मांग रहे हैं, ठीक है? शो इट टू यू गाइस। Yeah, so there is a question on YouTube, which is better, CH V11 और V12? देखो ये बेटर की बात नहीं है, इट्स अ वर्जन अपग्रेड, ठीक है? तो ये वर्जन अपडेट हुई है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। V11 में कुछ टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स को जो अपडेट किया उन्होंने वो अब कहाँ पे है? V12 में। सो लेट्स सर्च फॉर जॉब्स इन इंडिया, राइट? एंड यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा? मैं सिर्फ सर्टिफिकेशन के हिसाब से सर्च करूंगा, CEH। So you guys can see that there are around, अभी आ रहे हैं, नहीं मैं इंडिया में सर्च करता हूँ, राइट? सो CEH
India. Just a second. So you guys can see कितने results हैं 1172 results. Obviously आधे job roles ऐसे हैं जो senior level roles हैं, but काफी roles ऐसे भी हैं जो junior level roles भी हैं, और उन सब में क्या requirements हैं? CH तो उनमें एक certification requirement होगी. Plus CEH is the only certification, right? जैसे मैं ये चलाता हूँ मोबी ट्रेल में जो जॉब है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं सर्टिफिकेशंस CEH और किसी में देखते हैं, बार्कलेस में देखते हैं. सो बार्कलेस में सर्टिफिकेशन में एक तो CH लिखा होगा उन्होंने, राइट? एंड CH के साथ और कौन सी सर्टिफिकेशंस है? GREM, GCIA, GCFA, GCIH. अब ये कौन सी सर्टिफिकेशन है? दे आर फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड SANS. एंड ये एक सर्टिफिकेशन इज अराउंड $8,000 to $10,000, नॉट रुपीज, $8,000 to $10,000. सो CH एक ऐसी सर्टिफिकेशन आती है which is affordable and can get you a job in cyber security. Or even if you are in cyber security, it will help you get a raise, right? Or a hike. इसका ये मतलब है. Got it everyone? ठीक है. तो मैंने आपको किसके बारे में बताया? आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया. I've also been talking about some platforms जैसे एक ही है Try Hack Me, a very popular platform. इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, right? उसके बाद आजकल इनका एक चैलेंज भी चल रहा है which is called Advent of Cyber. वो अब खत्म होने वाला ऑलमोस्ट. मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज है. तो दिस इज कॉल्ड Advent of Cyber. तो ये हर साल दिसंबर में चलता है. And for 25 days, for 24 days actually, क्योंकि क्रिसमस पे ये छुट्टी रखेंगे आपको. For 24 days, they will teach you new concepts. And not only that, you also qualify for some gifts and prizes. जैसे Security Plus के vouchers मिल जाएंगे, Offensive Security की पूरी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, right? तो इसमें पूरा बताया कि आप क्या क्या सीखने वाले हो. Frameworks क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, लॉग एनालिसिस, OSINT, ब्रूट फोर्सिंग. अब इसका ये मतलब क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली? सो ये जो रेड में जो टॉपिक्स हैं, दीज आर फॉर रेड टीमिंग और ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी. जो ब्लू में है, दे आर फॉर डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी. और यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योर कोडिंग को इन्होंने रखा है पर्पल टीमिंग में, और यहाँ पे आप थोड़ी बहुत सिक्योर कोडिंग भी सीख सकते हो. गॉट इट? दे आर टीचिंग यू what? A lot of concepts. Right? What else? You've got Hack the Box. Which is also a really good training platform, but ये beginners के लिए नहीं है. So anyone who's preparing for OSCP or OSED, ठीक है, उनके लिए platforms हैं. And if you want to set up all the labs by yourself, तो एक platform है which is Hub. राइट? तो वर्ल्ड हब में आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा वर्चुअल मशीन डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी लैब बना सकते हो. सो दैट इज व्हाट यू कैन डू, राइट? तो अगर आपके पास 4 GB रैम है तो इट इज गुड, बट अगर आपके पास 8 है तो उसमें आपकी सारी लैब्स चल जाएंगी, राइट? एनी अदर क्वेश्चंस? All right. So if you guys have no questions for me, I think that is going to be all for today's session, right? So this week you'll get a notification when this batch is going to start, and हम क्या करेंगे? We'll start with CEH V12, and उसमें क्या क्या लैब प्लेटफॉर्म रहेगा उनका, किस तरीके से उनकी साइबर रेंज काम करेगी. I'll show that to you guys. All right. So that is going to be all. Thank you, and see you in the next session. All right, everyone. Take care.